I hope everyone is here now. We are going to start our lecture on glass ionomer cements. Last week we were actually doing zinc-based cements. We are still on the huge section of dental cements, which is about the materials which join or which actually bond the prosthesis with the tooth. ठीक है जी? So today's section is about non-zinc based cement, which is glass ionomer cement. For glass ionomer cements, I would like to mention one thing, that they are non-eugenol, non-zinc based cements. These glass ionomer cements are used for bonding prosthesis with the tooth structure, which include inlay, onlay, crown, and bridges. They are used as lining materials, they are used as luting materials, they are used for fillings, or they are used for restorations. I hope my voice is clear and you can hear me. ठीक है जी. Let's summarize our last week's lecture. Our last week's lecture was about dental cements, and we actually went through a huge classification of dental cements. उसमें 3 तरह की classifications थी. एक classification system base कर रहा था कि dental cements का liquid कौन सा है. So we had water based, oil based and resin based cements. दूसरी क्लासिफिकेशन सिस्टम इस चीज़ पे बेस कर रहा था कि सीमेंट्स को किन एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है. तो वी हैड लाइनिंग, ल्यूटिंग एंड बेस एंड रेस्टोरेटिव सीमेंट्स. ठीक है जी. इसके अलावा इसमें इनके मेन कंपोनेंट के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन थी. फॉर दैट वी हैड जिंक बेस्ड सीमेंट्स एंड वी हैड नॉन जिंक बेस्ड सीमेंट्स. ठीक है जी. आई होप माई वॉइस इज क्लियर नाउ. आई कैन ओनली सी 22 पार्टिसिपेंट्स अप टिल नाउ. Please ask the class to join the lecture soon. Okay? Lecture has been started and we are going through the section of glass ionomer cements. Okay जी, glass ionomer cements are derived from silicate cements. Silicate cements वही हैं जो आपने भी पढ़े हैं डॉक्टर महविश के साथ भी. They are derived from silicate cements. That's why they are composed of fluoride, aluminium, and silicates. Plus, they have polyacrylic or polycarboxylate cement in their liquid. This polycarboxylate cement actually makes a chemical bond with the tooth structure. इस polycarboxylate cement का carboxylic group और आपके दांत के enamel का calcium, ये दोनों मिलके chemical bond बनाते हैं. They are the materials which consists of an acid decomposable glass. Acid decomposable glass means ऐसा acid जो कि ग्लास को डिकम्पोज कर सकता है, और ग्लास पार्टिकल्स इसमें होते हैं पाउडर में. ठीक है. पाउडर में फ्लोराइड होता है, एल्यूमिनियम होता है और सिलिकेट होता है. और लिक्विड में वी हैव पॉलीएक्रिलिक एसिड. दिस इज एन एसिड बेस रिएक्शन. ठीक है. ये एसिड बेस रिएक्शन होता है और जिसके एंड पर हमें एक न्यूट्रलाइज्ड सॉल्ट मिल जाता है. ग्लास ionomer cement was invented by Wilson and Kent in 1972. ठीक है जी. ये सिलिकेट सीमेंट, सबसे पहले जो सीमेंट्स बने थे those were zinc phosphate cements. After zinc phosphate cements, they introduced silicate cements, and after silicate cements, next cement in the row was glass ionomer cements. They have a color which is similar to the tooth structure. दांत के जैसा थोड़ा सा रंग होता है इनका, इसलिए इनको static cements कहा जाता था. क्योंकि इससे पहले सिलिकेट और फॉस्फेट सीमेंट्स बिल्कुल सफ़ेद या चौकी वाइट या ओपेक कलर के होते थे. So they introduced glass ionomer cement as an aesthetic cement जो class 3 और class 5 restorations के लिए इस्तेमाल हो सकता है. Glass ionomer cements, they provide adhesion या bonding to the tooth structure. Chemical bond देता है. Anti-karyogenic effect because they release fluoride. They have a huge source of fluoride from different times. They are thermally compatible with the tooth structure because their coefficient of thermal expansion is similar to that of the tooth structure. This is a very, very, very important MCQ question.
कि the material which has coefficient or COE similar to the tooth structure is glass ionomer cement. They are biocompatible and they have low cytotoxicity. कोई इरिटेशन नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है, कोई पल्पल सेंसिटिविटी नहीं है. दे आर वाटर बेस्ड सीमेंट्स. ठीक है जी. इसमें या तो ये इनके पाउडर में ही पॉलीक्रिलिक एसिड फ्रीज ड्राइड फॉर्म में होता है, या फिर ये होता है कि पाउडर इज इन द जार एंड पॉलीक्रिलिक एसिड इज इन द लिक्विड जार. ठीक है. 40% पॉलीक्रिलिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है. ग्लास में आपको अगर हम देखें पाउडर में, तो पाउडर में हमारे पास फ्लोराइड आ जाता है, एल्यूमिनियम आ जाता है और सिलिकेट ग्लास पार्टिकल्स आ जाते हैं. इसके अलावा दे हैव स्ट्रॉन्शियम लैंथेनम या बेरियम सल्फेट. ठीक है जी. दे प्रोवाइड रेडियो ओपेसिटी. रेडियो ओपेसिटी का फ़ायदा ये है कि जब पेशेंट के मुंह में फिलिंग हुई हुई है और अगर खुदा न खासा पेशेंट को सेकेंडरी केरीज हो जाए तो एक्सरेज पे नज़र आ जाता है कि जी फिलिंग किस डेप्थ तक की गई है. इट्स बिकॉज ऑफ दिस बेरियम स्ट्रॉन्शियम एंड एल्यूमिनियम ग्लासेस. ठीक है जी. लैंथेनम भी है. Glass ionomer liquid में there is polyacrylic acid with copolymer of itaconic and malic acid. ठीक है. और इसके अलावा tartaric acid. ये जो पॉली एसिड है ग्लास आइनोमर में, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं. ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स जो हैं दे एक्चुअली मेक कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन. और इस सोल्यूशन में जो कार्बोक्सिल आइंस हैं वो जाके दांत के कैल्शियम के साथ अटैच करते हैं. और कैल्शियम किसका है? इनेमल का. ठीक है जी. ग्लास आइनोमर सीमेंट्स जो हैं दे हैव polyacrylic acid in the liquid which increase their the polyacrylic acid in the liquid is either copolymerized with malic acid or itaconic acid. ये कोपॉलीमर्स हैं. कोपॉलीमर्स हमेशा लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं. दे इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ द मेन पॉलीमर विच इज एक्रिलिक एसिड. दे डिक्रीज द विस्कोसिटी क्योंकि ये थिन होते हैं और पॉलीक्रिलिक एसिड थिक होता है. एंड दे रिड्यूस द टेंडेंसी फॉर जेलेशन. जेल बन जाती है, उसको थोड़ा सा डिले करती है. इट्स बिकॉज ऑफ मैलिक और आइटोकॉनिक एसिड कि आपको लॉन्गर वर्किंग टाइम मिल जाता है. ठीक है जी. पॉली एसिड्स अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास एक टार्टरिक पॉलीएक्रिलिक एसिड है और इसके अलावा हमारे पास टार्टरिक एसिड और हमारे पास आइटोकॉनिक एसिड है. ठीक है जी. टार्टरिक एसिड जो है वो मॉडिफायर है. इट एक्चुअली इम्प्रूव्स द हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. इट इंक्रीजेज द वर्किंग टाइम. लेकिन इस टार्टरिक एसिड की वजह से होता है कि सेटिंग जल्दी हो जाती है. ठीक है. इट एक्चुअली मेक्स द कॉम्प्लेक्स एंड इट इंक्रीज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. हम अगर पाउडर में देखें तो हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड. 3 डिफरेंट सोर्सेज से वी हैव फ्लोराइड्स. ठीक है जी. दैट्स वाई दिस इज सीमेंट विच इज़ कॉल्ड एंटी कैरियोजेनिक क्योंकि इसमें से फ्लोराइड रिलीज होता रहता है. इसके पास 3 डिफरेंट आइंस हैं जो सब्सिक्वेंटली फ्लोराइड रिलीज करते रहती है. सो जैसे पेशेंट के मुंह में जो है डीमिनरलाइज एनामल प्लाक के बाद रीमिनरलाइज होता रहता है. इसके अलावा इसमें एल्यूमिनियम फॉस्फेट आइंस भी हैं. ग्लास आइनोमर सीमेंट किस तरह से बनता है? सिंटरिंग की जाती है कि सारे पाउडर पार्टिकल्स को मिक्स करके हाई टेम्परेचर पे हीट कर लिया जाता है. फिर उनको ठंडे पानी में डाल के क्वेंच करते हैं. क्वेंच करने के बाद उसको ग्राइंड कर लिया जाता है. ठीक है. इसमें फ्लोराइड को एज अ फ्लक्स ऐड किया जाता है. फ्लोराइड के 2 फ़ायदे हैं. एक तो जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है उस वक्त ये जो टेम्परेचर है फ्लोराइड की वजह से फ्लो बन मिल जाता है इसको. और सेकेंडली जब पेशेंट के मुंह में होता है तो फ्लोराइड की वजह से देयर इज कांस्टेंट फ्लोराइड रिलीज. ठीक है. मैंने आपको पहले बताया था कि जो पार्टिकल साइज़ हम रेस्टोरेटिव ग्लास आइनोमर इस्तेमाल करते हैं उनका पार्टिकल साइज़ ज़्यादा होता है. जो ल्यूटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्राउन ब्रिज को लगाने के लिए दांत के साथ, उनका पार्टिकल साइज़ कम होता है. Glass ionomer cements are used for restoration of class 3 and 5 cavities. अगर आपने class 3 cavities प्री ऑपरेटिव में पढ़ी हो तो आपको पता होगा class 3 cavities जो हैं वो हमेशा मेजियल. ठीक है. आपका इंसाइजर है या आपकी किसी भी दांत का मेजियल या लेटरल साइड इन्वॉल्व है. दैट इज क्लास 3. क्लास 5 जो हैं वो आपके प्री पर होती हैं. कैविटीज़ होती हैं. सर्वाइकल छोटी कैविटीज़ होती हैं. उनको सीमेंट को एज ए ल्यूटिंग एजेंट भी इस्तेमाल किया जाता है, एज अ लाइनर, एज इंटरमीडिएट रेस्टोरेशन, एज बेस. मैं इस पर बार बार नहीं जाऊंगी.
कि लाइनियर ल्यूटिंग का बेस क्या है। अच्छा, देयर इज़ अ वार्निंग फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट सबमिटेड देयर असाइनमेंट नंबर 2 येट, जो इनले ऑनले क्राउन और ब्रिज पे तकरीबन सब स्टूडेंट्स ने कर दिए। मैं इसमें सिर्फ उन स्टूडेंट्स को एक्सक्यूज़ कर रही हूँ जिनकी सप्ली है और जिनका अगले महीने एग्ज़ाम है, ठीक है। जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं है और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना फर्स्ट वीक एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था, उनके लिए बड़ी स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि वो मुझे फ़ौरन असाइनमेंट सबमिट कराएं, अदरवाइज़ आई विल मेंशन देयर नेम्स इन डीएमई। मैं रिटन लिख के दूंगी और जब मैं रिटन लिख के दूंगी विद माई स्टैम्प, फिर आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा, आई एम स्टिल गेटिंग द असाइनमेंट्स ऑफ लाइनिंग ल्यूटिंग बेसिस, दैट्स गुड। और इसकी जो डेडलाइन है वो आपकी कल तक है, ठीक है जी। क्लिनिकल एप्लीकेशन ग्लास आइनोमर की सीमेंट्स की देखें तो इरोजन और एब्रेजन लीजन्स में इस्तेमाल होते हैं। इरेजन और एब्रेजन ये होता है टूथब्रश इरेजन, यानी बहुत ऐसे पेशेंट्स जो बहुत ज़ोर से घिस के दांत को टूथब्रश करते हैं तो वहाँ से दांत घिसना शुरू हो जाता है, इसको कहते हैं एब्रेजन। और जिन पेशेंट्स में पेप्टिक अल्सर का या इस तरह का प्रॉब्लम होते हैं तो उनमें बार बार एसिड रिफ्लेक्स की वजह से बार बार उनको एसिडिक बुखार आने की वजह से उनके दांत की सरफेस पे जो इनामल है वो इरोड होना शुरू हो जाता है, उतरना शुरू हो जाता है। इन सारी केसेस को रिपेयर के लिए भी ग्लास का स्टोर बिल्डअप मटीरियल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और इस्तेमाल के बाद उनका जो फाउंडेशन बनाई जाती है दांत की, वो बिल्डअप से बनाई जाती है। लूटिंग अप्लायंसेस को लूटिंग के सीमेंटेशन कहते हैं। स्प्लिंटिंग ऑफ ए वॉल्स टूथ, वो कहते हैं कि अगर आपका दांत थोड़ा सा पेशेंट गिरा है और सॉकेट से थोड़ा बाहर आ गया है तो उसको वापस स्प्लिंट बैक किया जा सकता है 6 घंटे के अंदर अंदर। उस प्रोसेस में क्या करते हैं कि ग्लास आइनोमर सीमेंट दांत के इर्द लगा देते हैं और वहाँ पर 6 आवर्स के अंदर अंदर पेरिडोंटल मेम्ब्रेन जो फाइबर्स जो हैं वो दोबारा से बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं जी स्प्लिंटिंग ऑफ एवल्स टूथ। लेकिन आपसे कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा कि एवल्जन क्या चीज़ होती है। आप अगर नाम लेंगे तो फिर आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। जस्ट राइट इट डाउन कि स्प्लिंटिंग ऑफ एवल्स टूथ। सेटिंग रिएक्शन देखें तो इसका सेटिंग रिएक्शन 3 स्टेजेस में होता है। हम ग्लास आइनोमर सीमेंट पढ़ रहे हैं जिसका सेटिंग रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन है और ग्लास आइनोमर सीमेंट एक नॉन जिंक बेस सीमेंट है, ठीक है। सेटिंग रिएक्शन 3 फेजेस में होता है, डिसोल्यूशन, जिलेशन और हार्डनिंग। दिस सोल्यूशन जाहिर है इसमें पहले जो है पाउडर और जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स मिक्स एंड दे एक्चुअली रिलीज हाइड्रोजन आयंस। अच्छा जी, यू मस्ट म्यूट योर सेटिंग्स। जिन स्टूडेंट्स से सेटिंग्स को म्यूट पे नहीं किया हुआ इसको प्लीज़ म्यूट भी कीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट फेज में क्या होता है, दिस सोल्यूशन के बाद जिलेशन शुरू होती है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेज इज जिलेशन। जिलेशन में क्या होता है कि थिकनिंग शुरू हो जाती है, सिलिका जेल फॉर्म होना शुरू हो जाती है और आपके एक एल्यूमिनियम, कैल्शियम और फ्लोराइड आयंस रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। ये आयंस और आपके पॉलीएक्रिलिक एसिड के कार्बोक्सिल आयंस ये मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स जो है इवेंचुअली आपके दांत में जो इनामल है उसके कैल्शियम के साथ मिलके केमिकल बॉन्ड बनाता है। आई थिंक इस सेटिंग रिएक्शन को मैं पीछे बता चुकी हूँ कि इट इज डिसोल्यूशन जिलेशन। फॉर डिसोल्यूशन वी हैव mixing of powder with the liquid. For gelation there is formation of silica gel and release of these ions. And third stage is hardening जिसमें सीमेंट हार्ड होना शुरू हो जाता है। ये सारे आयंस मिलके मीनवाइल एक कैल्शियम आयन ब्रिज बनाती हैं आपके इनेमल की कैल्शियम के साथ। कैल्शियम आयंस वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम आयंस ना सिर्फ ये ग्लास आयनोमर में भी होते हैं बल्कि आपके इनेमल में भी होते हैं। कैल्शियम आयंस जो हैं वो फ्री आयंस के तौर पर रिलीज़ होते हैं आपकी मैट्रिक्स से, और जितनी तेज़ी से कैल्शियम आयंस रिलीज़ होते हैं उतनी तेज़ी से आपका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है एसिड का वो आपके इनेमल के साथ बॉन्ड बनाना शुरू करता है और उतनी तेज़ी से आपका जिलेशन फेज इवेंचुअली हार्डनिंग फेज की तरफ चला जाता है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द सेटिंग केमिस्ट्री। इसकी सेटिंग केमिस्ट्री में याद रखने वाली बात यह है कि फ्री आयंस रिलीज़ होते हैं, इसके बाद मेटल आयंस ब्रिजेस बनते हैं इनेमल और आपके सीमेंट के दरमियान, और इवेंचुअली देयर इज़ हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट। ठीक है जी। हम इनिशियल सेटिंग देखें तो देयर इज़ कैल्शियम आयन क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर जेल। एक ऐसी जेल है जिसको सारे का सारा कैल्शियम आयंस ने उसको अपने हसार में लिया हुआ है या उसको बाउंड्री किया हुआ है। फाइनल सेटिंग में ये होता है कि जब इवेंचुअली एल्यूमिनियम आयंस भी क्रॉस लिंक करना शुरू कर देते हैं।
और फाइनल सेटिंग पहले से लेके तीसरे दिन तक जारी रहती है। ठीक है, इवेंचुअली थर्ड डे पे जाके फाइनल सेटिंग कंप्लीट होती है, क्योंकि आपको पता है इसमें पॉलीमर है तो एसिड बेस के साथ कुछ ना कुछ पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस भी चलता है। पॉलीमराइजेशन इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस और इट कंटिन्यूज फॉर फ्यू डेज और मे बी सो मेनी डेज। वाटर इज अ रिएक्शन मीडियम। आपने पहले ही पढ़ा था कि जिंक फॉस्फेट में भी वाटर इंपॉर्टेंट है। आपने इससे पहले पढ़ा था कि जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट में भी वाटर इंपॉर्टेंट है। ये पॉलीमर चेन्स को हाइड्रेट करता है। अगर ये वाटर ना हो तो आपका सीमेंट हार्ड नहीं हो सकता। ठीक है जी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि योर सीमेंट इज़ वेरी सेंसिटिव टू मॉइस्चर। अगर आप सेटिंग के दौरान जब वो अभी हार्ड हो रहा है पेशेंट के मुंह में, आप अगर उसको सलाइवा से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आपका सीमेंट ब्रेक होना शुरू हो जाएगा और वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि इसके अंदर पॉलीमर है। लेकिन अगर आप इसको ओवर ड्राई करने की कोशिश करेंगे तो उसकी सर्फेस पे क्रैक्स पड़ जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड डेसिकेशन। वो ये कहते हैं कि जी जब आप पेशेंट के मुंह में फिलिंग कर लेते हैं तो उसके ऊपर वेज़लिन लगा के उसको कॉटन बड से कवर करके पेशेंट को घर भेजें। ठीक है, क्योंकि अभी भी एंड पर भी पेशेंट के मुंह में फिलिंग से वाटर जो है वो हल्का हल्का रिलीज हो रहा है। अगर आप उसको ओवर ड्राई कर देंगे स्प्रे देके या एयर स्प्रे देके तो वो डेसिकेशन हो जाएगी और पेशेंट के मुंह में जो ग्लास आयनों में फिलिंग उस पर क्रैक्स पड़ जाएंगे। क्रैक्स पड़ने के बाद आहिस्ता आहिस्ता की फिलिंग फ्रैक्चर होना शुरू हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि फिलिंग को कवर करके भेजिए। अगर आप पेशेंट के मुंह में उस वक्त मॉइस्चर डालने की कोशिश करेंगे जिस वक्त वो के हार्ड हो रहे हैं तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी इफेक्ट होंगी और सीमेंट की जो एक शाइनी है ट्रांसल्यूसेंट अपीयरेंस है वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपने एक्चुअली मैट्रिक्स को ख़त्म कर दिया, मैट्रिक्स को ख़राब कर दिया। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम कि वी एक्चुअली नीड टू, हाँ ये सुमेध, वी कैन एक्चुअली यूज़ वार्निश और वी कैन यूज़ वेज़लिन। ठीक है, मैं वहीं पर आ रही हूँ अभी आहिस्ता आहिस्ता। वेरी राइट कि वी शुड यूज़ वार्निश और वी शुड यूज़ वेज़लिन। कि वो ये कहते हैं कि जी आप जब डेसिकेशन से उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर योर सीमेंट। आप उसको कैसे सीमेंट को कंट्रोल करेंगे, या तो आप उसके ऊपर वेजिंग लगाएंगे। आजकल वेजिंग लगाई जाती है ज़्यादातर, क्योंकि वार्निशेज अब ख़त्म हो गई हुई हैं, क्योंकि वार्निश जल्दी इवेपोरेट हो जाती है। आइदर यू विल अप्लाई अ बॉन्डिंग एजेंट, सीलिंग एजेंट इसको कहते हैं, रेजिन बॉन्डिंग एजेंट या फिशर सीलेंट्स जो आते हैं वो भी उसको कवर कर देते हैं। उसके सरफेस पे एक बैरियर या एक शाइनी सी लेयर बना देते हैं। या फिर आप एक कैविटी वार्निश लगा लें ताकि माइक्रो लीकेज ना हो और सरफेस कवर्ड रहे। ठीक है जी। The factors which affect the rate of setting they include high powder ratio. पाउडर ज़्यादा है, लिक्विड कम है तो वर्किंग टाइम डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप ऐसा पाउडर यूज़ करते हैं जिसके अंदर पाउडर और लिक्विड के फ्रीज ड्राइड पार्टिकल्स ऑलरेडी मौजूद हैं और आप उसको पानी के साथ मिक्स कर रहे हैं, यू विल हैव लॉन्गर वर्किंग टाइम। ठीक है, सारा पानी है, पानी जल्दी इवेपोरेट नहीं होता। टार्टरिक एसिड एंड मैलिक एसिड जो है वो जो इनिशियल जो डिसोल्यूशन है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, ये ना सिर्फ ये कि डिसोल्यूशन में हेल्प करता है बल्कि ये सिलिका जेल में बनने के प्रोसेस में भी हेल्प करता है और इसकी वजह से हमें एक लॉन्गर वर्किंग टाइम मिल जाता है। ठीक है जी, क्योंकि ये एल्यूमिनियम आयंस को लिबरेट करता है और ये आयनाइजेशन को प्रिवेंट करता है। हम अगर फैक्टर्स देखें तो वही 4-5 फैक्टर्स हैं, पार्टिकल साइज है, इंक्रीज इन टेम्परेचर है, पाउडर लिक्विड रेशियो एंड रोल ऑफ वाटर है। अब हम दूसरे सेक्शन की तरफ आते हैं, विच इज़ एक्चुअली क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लास आयनोमर सीमेंट्स। ग्लास आयनोमर सीमेंट्स हमारे पास तकरीबन 3 टाइप्स के हैं। वी हैव क्लास 1 और टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 इज ल्यूटिंग एंड बॉन्डिंग एजेंट्स। ये वो हैं जो आपके क्राउन, ब्रिज, इनले, ऑनले को दान के साथ लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो टाइप 2 वी हैव रेस्टोरेटिव मटेरियल्स। अब इसमें एक तो रेस्टोरेटिव एस्थेटिक और रेजिन मॉडिफाइड आ जाते हैं। इसमें एक तो ऐसा पार्ट है जिसमें रेजिन डाल के उनको रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमर सीमेंट बनाया जाता है और दूसरे कन्वेंशनल है जो नॉर्मल रेस्टोरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये अमूमन छोटी रेस्टोरेशन के लिए या इंटरमीडिएट रेस्टोरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। थर्ड टाइप जो है दैट इज़ लाइनिंग और बेस सीमेंट्स। ठीक है, लाइनिंग और बेस सीमेंट्स। आप आजकल लाइनिंग और बेस के असाइनमेंट कर रहे हैं। आपको पता है कि लाइनिंग इज़ लेस स्ट्रॉन्ग, लाइनिंग इज़ मोर थिन एज कम्पेयर टू, ये थर्मल इंसुलेटेड है। ल्यूटिंग के इस्तेमाल होता है वो सीमेंटेशन ऑफ इनले, ऑनले, क्राउन्स एंड ब्रिजेस के लिए इस्तेमाल होता है। इसके लिए पाउडर लिक्विड रेशियो इज अबाउट 1.5:1। ऑल ऑफ दीज आर एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर एमसीक्यू क्वेश्चंस। ल्यूटिंग हमेशा आप थिन कंसिस्टेंसी मटेरियल के साथ करते हैं, दैट्स व्हाई द पाउडर लिक्विड रेशियो
जो अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा जो लिक्विड है वो फ्रीज ड्राई फॉर्म में है, तो फॉर दैट केस आप फिर 3.8 रेज टू 1 इस्तेमाल करेंगे। 3.8 इज़ योर पाउडर एंड 1 इज़ योर वाटर, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लिक्विड मौजूद है, पाउडर ज़्यादा इस्तेमाल करें। ल्यूटिंग वालों की मॉडरेट स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट इज रेस्टोरेटिव टाइप। Materials. Gee, we are now back on the slide. I hope you all can hear me. We are talking about the restorative glass ionomer cements. ठीक है जी, जिसमें हमारे पास एक तो रेजिन कंटेनिंग ग्लास आइनोमर सीमेंट्स थे और दूसरे हमारे पास कन्वेंशनल सीमेंट्स। ठीक है जी, अगर इसमें एक बात याद रखने की कि अगर आप एक ऐसा सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें लिक्विड और पाउडर एक ही बॉटल में मौजूद है और आपने इसको पानी के साथ मिक्स करना है, तो पाउडर रेशियो विल ऑलवेज बी मोर, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी लिक्विड मौजूद है आपके पाउडर बॉटल में। ठीक है, रेस्टोरेटिव मटेरियल्स आर लेस ट्रांसल्यूसेंट, दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट वैरायटी ऑफ शेड्स बिकॉज दे हैव पॉलीमर्स इन देम। पॉलीमर्स हमारे पास उन्हीं शेड्स के आते हैं जो एडजेसेंट टीथ होते हैं, तो इसलिए इनको एस्थेटिक सीमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, सिंस इट्स अ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन सो इट कंटिन्यूज इवन 24 to 48 आवर्स आफ्टर प्लेसमेंट। पेशेंट को कहते हैं जी एक दो दिन तक एहतियात करें, उस तरफ से खाना ना खाएं, कोशिश करें कि आप कोई सख्त चीज़ ना चबाएं। सेकेंड जो रेस्टोरेटिव मटेरियल्स हैं वो ग्लास एनिमल सीमेंट्स हैं जिनमें मेटल्स डल जाते हैं या कंडेंसेबल होते हैं। हम आगे देखते हैं कि किस किस्म के मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, ये क्लिनिकल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होते हैं जहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और रैपिड सेटिंग इज़ रिक्वायर्ड। ये ज़्यादातर बच्चों में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्दी सेट हो जाएं और इनको स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। ठीक है जी, इनको हम मेटल रीइंफोर्स्ड सीमेंट्स कहते हैं। टाइप 1 में रिपीट कर देते हैं, हमने टाइप 1 पढ़ी थी ल्यूटिंग सीमेंट, टाइप 2 रेस्टोरेटिव सीमेंट, अब हम टाइप 3 पढ़ रहे हैं ग्लास आइनोमेक विच आर लाइनिंग और बेस सीमेंट्स। इसको भी रिपीट करने की जरूरत नहीं है। दे आर रेडियो ओपेक, दे प्रोवाइड थर्मल इंसुलेशन, इन केस दे आर यूज्ड एज बेसिस दे हैव थेरेप्यूटिक इफेक्ट। ग्लास आइनोमर सीमेंट्स दे प्रोवाइड एडहेजन टू एनामल एंड डेंटिन, पहली इनकी प्रॉपर्टी। अब आप देखिए कितना डिटेल्ड अकाउंट है प्रॉपर्टीज का। आप अगर इस तरह पूरा नहीं भी लिख सकते तो कम से कम 2 लाइनें आपकी प्रॉपर्टीज में ज़रूर हो। ये नहीं होता सिर्फ कि आप एक नंबर 1 डालें और लिख दें एडहेजन टू एनामल एंड डेंटिन। इसके नीचे आपको एक पूरी 1 या 2 लाइन में कम से कम लिखना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब है और एडहेजन कैसे होती है। एडहेजन चिलेशन के थ्रू होती है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आपके सीमेंट के और कैल्शियम आपके एनामल और डेंटिन के, ये दोनों मिलके केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम स्टिलेशन कहते हैं। ये आपका सीमेंट है जिसका कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये आपका टूथ स्ट्रक्चर है जिसका कैल्शियम ग्रुप है। इन्होंने मिलकर चिलेट्स बनाए हैं और इन चिलेट्स की वजह से यू आर गेटिंग द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, दे हैव गुड बॉन्डिंग विद द डेंटिन एंड एनामल, विद एनामल देन डेंटिन। ठीक है, इनमें पॉलीएक्रेलिक एसिड होता है और वो पॉलीएक्रेलिक एसिड जो है इट प्रोवाइड्स एडहेजन। ठीक है, वो ये कहते हैं कि जैसे जैसे सीमेंट सेट होता है, पीएच बढ़ना शुरू होता है, एपिटाइट लेयर जो है रिज्यूम होती है, रीमिनरलाइज होना शुरू होती है, तो कैल्शियम सॉल्ट्स जो हैं सीमेंट के और कैल्शियम सॉल्ट्स जो इनेमल के हैं वो भी आपस में मिक्स होके बॉन्ड बनाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, so just the thing which you should remember is के carboxyl group and calcium of the cement and calcium of the tooth, they both make third C which is chemical bond. Bond strength is better with enamel than dentine क्योंकि ये कैल्शियम कंटेनिंग सीमेंट है और जाहिर है कि इसका कैल्शियम के साथ बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेंटिन इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ कोलेजन, दैट्स द रीज़न कि enamel bonding is more better with glass ionomer cement than the dentine. In case of dentine उसमें bonding होती है कोलेजन के कार्बोक्सिल ग्रुप्स के दरमियान और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और मेटलाइन ब्रिजेस बनते हैं। ठीक है, वो ये कहते हैं कि इन केस अगर डेंटिन में बॉन्डिंग हो भी रही है तो स्टिल द बॉन्ड टू द एनामल इज मोर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू द डेंटिन। ठीक है जी, अमूमन इफ दे
actually clear the surface of the cavity before application of the cement, इसको हम कहते हैं कि जो tenacious एक स्मेयर लेयर बन जाती है, तो कहते हैं उसको क्लियर कर दें, उसके ऊपर सिट्रिक एसिड लगा दें। जैसे आपने माइक्रो मैकेनिकल रिटेंशन में देखा था, माइक्रो मैकेनिकल एडहेजन ऑफ कंपोजिट्स के केस में आपने देखा था कि आपने फॉस्फोरिक एसिड अप्लाई किया था। इसी तरह कहते हैं कि जी इस केस में अगर आप ग्लास आइनोमर सीमेंट लगाने से पहले सिट्रिक एसिड अप्लाई कर लें तो आपको ज़्यादा अच्छे पोर्स मिल जाते हैं और डेंटिन ट्यूब्यूल्स बिल्कुल ओपन हो जाते हैं और आपका सीमेंट बहुत अच्छा बॉन्ड बना लेता है। वो कहते हैं कि आइदर यू शुड ट्रीट द सर्फेस विद द पॉलीक्रिलिक एसिड और यू शुड ट्रीट द सर्फेस विद द सिट्रिक एसिड। इन केस ऑफ composites MCQ का क्वेश्चन आप यूज़ करेंगे फॉस्फोरिक एसिड। इन केस ऑफ ग्लास आइनोमर सीमेंट दिस इज 10% पॉलीक्रिलिक एसिड और 10% सिट्रिक एसिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हम देखें तो दे आर मॉडरेटली हार्ड सीमेंट्स। ये मॉडरेट स्ट्रेंथ के सीमेंट्स होते हैं, ब्रिटल होते हैं क्योंकि इनमें ग्लास होता है, लो फ्रैक्चर टफनेस एंड लो वेयर रेजिस्टेंस सिंस दे कंटेन ग्लास एंड पॉलीमर्स। इनकी बाकी स्ट्रेंथ्स भी लो होती हैं, लो टू मॉडरेट होती हैं, ठीक है। हाई स्ट्रेस बेयरिंग एरियाज की रेस्टोरेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। दे आर नॉट रिकमेंडेड फॉर हाई स्ट्रेस बेयरिंग एरिया क्लास 1-2 कैविटीज़, क्लास 4 कैविटीज़ के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, कस्ट रीबिल्डिंग के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। जहाँ पे भी हेवी फोर्सेस आ रही हैं उधर इनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ग्लास आइनोमर सीमेंट इज इरोजन इज ससेप्टेबल टू एसिड इरोजन। वो सारे पेशेंट्स जिनमें एसिड रिफ्लेक्स का प्रॉब्लम है, जिनको गैस्ट्रिक अपसेट प्रॉब्लम है, जिनको जैसे खट्टे डिकार या इस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, उन सारे पेशेंट्स में ये बहुत ज़रूरी है कि ग्लास आइनोमर सीमेंट की एसिड इरोजन को मॉनिटर किया जाए। ऐसे पेशेंट्स से फिर आप कोशिश करते हैं कि आप ग्लास आइनोमर सीमेंट ना लगाएं। आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं कि आपने पहले कहा था कि ये इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर आप कहने कि इसको वहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इरोजन अगर माइल्ड है तो आप इसके ऊपर ग्लास आइनोमर सीमेंट लगा सकते हैं, लेकिन इसका डिग्रेडेबल स्ट्रक्चर होता है, इसका जो मैट्रिक्स है वो टूटने वाला होता है। अगर ऐसा पेशेंट जिसको बहुत ज़्यादा अल्सर की तकलीफ है, अल्सर का प्रॉब्लम है, जिसको रिगर्जिटेशन एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ऐसे पेशेंट में यू वोंट गो फॉर ग्लास आइनोमर सीमेंट। एंड इन केस अगर मॉडरेट एसिड रिफ्लक्स का पेशेंट है और आपने उसमें ग्लास आइनोमर सीमेंट लगा दिया है तो यू शुड ऑलवेज कवर इट विद वार्निश और रेजिन। ग्लास आइनोमर सीमेंट में हमेशा अगर आपसे सवाल पूछा जाए एसिड इरोजन को कैसे बचा सकते हैं, डेसिकेशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे बेहतर कर सकते हैं, हर जगह आप दो ही बातें लिखेंगे, या तो वार्निश अप्लाई करेंगे या फिर रेजिन अप्लाई कर देंगे ड्यूरिंग सेटिंग, ठीक है जी। ग्लास आइनोमर सीमेंट हमारे पास पाउडर लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं और कैप्सूल्स की फॉर्म में भी आते हैं। वो कैप्सूल्स हम जब मिक्सर में डालते हैं तो वो मिक्सचर जो है खुद ब खुद उस कैप्सूल को तोड़ के पाउडर लिक्विड को मिक्स करके बिल्कुल बहुत अच्छी सी हमें प्रोपोर्शनेट रेशो में इसको मिक्स करके हमें मिक्सचर दे देते हैं। इस पे क्वेश्चन था ग्लास आइनोमर का फ्लोराइड रिलीज कैसा है। ग्लास आइनोमर का जो मैट्रिक्स है वो फ्लोराइड रिलीज करता है, ठीक है। फ्लोराइड आइंस जो है दे आर नॉट इन्वॉल्व इन मैट्रिक्स फॉर्मेशन, यानी केमिकल रिएक्शन में वो हेल्प नहीं करते, लेकिन दे जस्ट कीप ऑन रिलीजिंग। ये फ्रीली मूविंग आइंस होते हैं, फ्रीली रिलीज्ड आइंस होते हैं और दीज आइंस प्रोवाइड एक्चुअली एंटी कैरियोजेनिक इफेक्ट। जाहिर है अगर वो मैट्रिक्स की केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल हो रहा होता तो वो वहीं बाउंड हो जाता और वो रिलीज़ ना होता, और अगर वो रिलीज़ ना होता तो फिर वो आपको एंटी कैरियोजेनिक इफेक्ट ना दे सकता। फ्लोराइड एक्चुअली increases the acid resistance of enamel, और ये जो रीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस है उसको एनहांस करता है। आपको पता है कि आप जब कोई शुगरी डाइट लेते हैं या कोई शुगर कंटेनिंग डाइट लेते हैं तो इट एक्चुअली रिड्यूस द पीएच ऑफ योर माउथ, और अगर आप उस दौरान ब्रश नहीं करते तो वो पीएच आहिस्ता आहिस्ता 24 घंटे तक एसिडिक रहता है, फिर वहाँ पे प्लाक एक्यूमुलेशन और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वहाँ डिग्रेडेशन और वहाँ पर ब्रेक डाउन फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। उस सब के बाद केरीज लगना शुरू हो जाती है। एक्चुअली ग्लास आइनोमर उस पेस को कंट्रोल करता है, ये जो पीएच लो होता है उसको जल्दी नॉर्मल पे लेकर आता है क्योंकि ये फ्लोराइड रिलीज करता है। इसको हम कहते हैं कि इट एनहांसेस द रीमिनरलाइजेशन प्रोसेस, इट एक्चुअली इम्प्रूव्स द केरीज रेजिस्टेंस, ठीक है। इनहिबिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है जी। फ्लोराइड एक्यूमुलेट्स इन डेंटल प्लाक, हमें पता है, और इट inhibits the carbohydrate metabolism by एसिडोजेनिक बैक्टीरिया जो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। इस वजह से एसिड प्रोडक्शन कम होती है, एंजाइम इनहिबिशन का जो प्रोसेस है
है वो भी इफेक्ट होता है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया के एंजाइम्स हैं उनको इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, इन शॉर्ट फ्लोराइड रिलीज एक्चुअली इंक्रीजेस द कैरीज रेजिस्टेंस। ठीक है जी, फ्लोराइड रिलीज कैसे होती है कि GIC रिमेन्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट फ्लोराइड रिलीजिंग सीमेंट। हमने देखा था कि हमने और सीमेंट्स में पढ़ा था, ये देखें सबके नाम है कि फ्लोराइड हमारे पास जिंक ऑक्साइड यूटिनॉल में भी होता है, फ्लोराइड हमारे पास जिंक फॉस्फेट सीमेंट्स में भी होता है, कैविटी बॉन्डिश में भी होता है, फिट्स एंड फिशर सीलेंट्स में भी होता है। लेकिन ये सब लंबे अरसे के लिए फ्लोराइड को रिलीज नहीं करते, इसलिए इनको एंटी कैरियोजेनिक नहीं माना जाता। ग्लास आयनोमर में फ्लोराइड ज़्यादा होता है और वो बहुत अरसे तक उसमें से रिलीज होता रहता है। That's why they are called the fluoride releasing cements. Fluoride recharge भी होता है। Fluoride recharge कैसे होता है? एनवायरनमेंट से होता है। अगर आप रेगुलर टूथब्रश करते हैं, माउथ वॉशेस इस्तेमाल करते हैं, तो उनका जो फ्लोराइड है वो आपका जो फ्लोराइड स्टॉक है आपकी फिलिंग में उसको रिस्टोर करता रहता है। इस तरह से वो जो स्टोर्ड फ्लोराइड है जब भी pH लो होता है उस वक्त रिलीज होना शुरू हो जाता है। ग्लास आयनोमर सीमेंट्स आर बायोकम्पैटिबल मटेरियल्स। ठीक है, दे आर पॉलीएसिड इज अ वीक एसिड, कोई सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म का इशू नहीं है इसमें। दे एक्चुअली दे हैव पॉलीफिलिक एसिड विच इज़ अ वीक एसिड, तो इनको हम डीप कैविटीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ थर्मल प्रॉपर्टीज, अगर हम थर्मल प्रॉपर्टीज होती है, दे हैव कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन विच इज क्लोज टू द टूथ, तो इनमें माइक्रो लीकेज का कोई चांस नहीं है। थर्मल इंसुलेशन इनकी अच्छी खासी होती है, ऑल्दो सेटिंग एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मगर क्योंकि ये एक थर्मल इंसुलेटर है तो इससे कोई थर्मल डिफ्यूजिविटी नहीं होती। ग्लास आयनोमर सीमेंट्स में स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनका कलर जो है सात के दांतों से मैच करता है, ये ट्रांसल्यूसेंट होते हैं और दे आर लेस स्टैटिक देन कॉम्पोजिट रेजिन्स, क्योंकि इनका जो शेड मैच है वो इतना परफेक्ट नहीं होता जितना कॉम्पोजिट्स का होता है। दे आर रेडियो ओपेक, क्योंकि इनमें मेटल लाइंस होते हैं। ठीक है, तो रेडियो ओपेक के सेकेंडरी केरीज पर अगर देखनी हो तो वो देखी जा सकती है। ठीक है जी, प्लस अगर हम ग्लास आयनोमर सीमेंट्स में देखें तो एडवांटेजेस, दे हैव फ्लोराइड रिलीज, देयर इज नो श्रिंकेज, दे आर डायमेंशनली, they provide disadvantages moderates। ठीक है, फिर अगर एसिड रिफ्लक्स का पेशेंट है तो उसमें इरोजन हो सकती है, इनका वर्किंग और सेटिंग टाइम शॉर्ट होता है। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सेक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ ग्लास आयनोमर सीमेंट्स। For metal reinforced glass ionomer cements we have cermet। सर्मिट में हमारे पास मेटल आइंस होते हैं और इसके अलावा हमारे पास ग्लास आयनोमर सीमेंट के आइंस होते हैं। ग्लास आयनोमर्स दे कैन नॉट विथस्टैंड स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, हाई स्ट्रेस वेरिंग एरियाज में इनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सो दिस एन अटेम्प्ट कि इनमें मेटल आइंस ऐड कर दिए जाएं ताकि इनकी ब्रिटनेस भी कम हो जाए और उनका अब्रेजन रेजिस्टेंस यानी जो इनका घिसना है वो भी ख़त्म हो जाए। ग्लास आयनोमर्स कैन बी रीइंफोर्स्ड का मतलब है कि इनको स्ट्रेंथन किया जा सकता है बाय एडिशन ऑफ सिल्वर अलॉय एमल्गम पार्टिकल्स। ठीक है, ये एक बाकायदा एक प्रोडक्ट है, ये कोई रिसर्च में नहीं है, इट्स अ कमर्शलाइज्ड प्रोडक्ट, सर्मिट के नाम से आता है। सिल्वर अलॉय एमल्गम पाउडर से इनकॉर्पोरेट पाउडर के साथ उसको कर देते हैं, या फिर वो क्या करते हैं कि जितने भी ग्लास के पाउडर पार्टिकल्स हैं उनको एनसर्कल कर लेते हैं सिल्वर मेटल के पार्टिकल्स के साथ। ठीक है, या तो फिजिकली दोनों पाउडर्स को मिक्स कर दिया जाता है, या फिर क्या होता है कि ग्लास आयनोमर के पाउडर्स को एनसर्कल कर लिया जाता है मेटल के पार्टिकल्स के साथ। ठीक है, दे आर कंपोज्ड ऑफ सर्मिट एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ सिल्वर एलॉय एडमिक्स्ड। सर्मिट वो है कि ग्लास आयनोमर पाउडर और एमालगम का पाउडर को मिक्स करके बना लिया जाता है और लिक्विड ग्लास आयनोमर पाउडर। अगर सिल्वर एलॉय एडमिक्स मैन्युफैक्चरर्स देते हैं जिनमें ऑलरेडी इन दोनों के जो पाउडर पार्टिकल्स हैं सिल्वर एलॉय एमालगम के और ग्लास आयनोमर के वो आपस में फ्यूज हुए हुए होते हैं।
अच्छा, इसमें फ्लोराइड रिलीज इज हायर इन सिल्वर एलॉय एडमिट जो मैन्युफैक्चरर देते हैं, क्योंकि डेफिनेटली उसने बनाया हुआ है तो उसने उसको सारे उसके जो टेम्परेचर है वो प्रॉपर किए हुए हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जो एडमिक्स्ड होते हैं इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो फ्लोराइड रिलीज भी ज़्यादा होता है। ये सब्स्टिट्यूट बना था एक्चुअली 1980s में, इट इज़ कॉल्ड मिरेकल मिक्स, ठीक है। और इसमें लेकिन स्टिल इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एमालगम जैसी नहीं, क्योंकि इसमें दो तरह के पाउडर पार्टिकल्स को मिक्स किया गया है, मेटल के और ग्लास आयनोमर के, दोनों की डिफरेंट केमिस्ट्री है। तो उसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि दोनों की जो पाउडर पार्टिकल्स हैं वो आपस में जो उनकी बॉन्डिंग है वो अच्छी नहीं है। सरमिट जो है इट्स सेकेंड, अभी हम एडमिट्स की बात कर रहे थे, अब हम सरमिट की बात कर रहे हैं। और सरमिट क्या है, वो भी ग्लास आयनोमर और मेटल का मिक्सचर है, और मेटल कौन सा, एलॉय का मिक्सचर है, ठीक है। ये यूजुअली 800 वो ये कहते हैं कि जो मेटल एलॉय के जो पैलेट्स हैं वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे बने हुए होते हैं एमालगम के, उनको इसके साथ मिक्स किया जाता है, ठीक है जी। दे वर डेवलप इन अटेम्प्ट टू इंक्रीज टफनेस। ग्लास आयनोमर का जो मेजर ड्रॉबैक है वो ये है कि ये एसिड, ये रेजिस्टेंस इसका कम है, मॉइस्चर रेजिस्टेंस कम है, दे हैव लेस स्ट्रेंथ, मॉडरेट स्ट्रेंथ मटेरियल्स इनको कहते हैं, इसलिए इनके लिए फिर ये मेटल रीइंफोर्स ग्लास आयनोमर्स बनाए गए थे। लेकिन इनका प्रॉब्लम ग्रे कलर के होते हैं। जाहिर है अगर आप ग्लास आयनोमर के पाउडर में मेटल का या सिल्वर का पाउडर डाल दें तो वो ग्रे कलर में आ जाएगा। ये रेडियो ओपेक होते हैं, लेकिन इनका जो फ्लोराइड रिलीज है वो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जाहिर है कि इसमें आधा पार्ट पाउडर आपका ग्लास आयनोमर है और आधा पार्ट जो है वो आपका सिल्वर एलॉय एमालगम है। एमालगम जाहिर है फ्लोराइड रिलीज नहीं करता, तो जाहिर है एक जगह में अगर आप 50% उसको रिड्यूस कर देंगे उसकी रेशियो को, तो जाहिर है फ्लोराइड रिलीज भी कम हो जाएगी। एप्लीकेशन से ज़्यादातर बच्चों में इस्तेमाल करते हैं, डेसिडिस टीथ, क्लास 2 कैविटीज़ ऑफ डेसिडिस टीथ, क्योंकि वहाँ पे जल्दी हार्ड हो जाते हैं और जल्दी इसका वर्किंग टाइम बहुत कम होता है, आपको जल्दी पेशेंट के मुंह में ये सेट भी हो जाते हैं और ये कुछ लंबे अरसे तक चल भी लेते हैं, और या फिर इनको बिल्डअप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी ऐसे पेशेंट्स में जहाँ पर आप इतनी सारी कैविटी बनी हुई, आप देख लें कि काफ़ी ज़्यादा दांत का स्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका है, ऐसे केसेस में फिर हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। दूसरे हैं रेजन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमर सीमेंट्स। पहला हमने सेक्शन पढ़ा था मेटल मॉडिफाइड ग्लास आयनोमर सीमेंट, अब हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ रहे हैं रेजन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमर सीमेंट्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ग्लास आयनोमर सीमेंट, बहुत सवाल इस पे से आते हैं। हम अगर ग्लास आयनोमर सीमेंट्स में देखें तो ग्लास आयनोमर सीमेंट्स की जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें वी हैव केमिकल एडहेशन टू द टूथ स्ट्रक्चर, दे आर स्टेबल, कोई श्रिंकेज नहीं है, chloride releases, so they are providing anti-cardiogenic effect and they are biocompatible. But on the other hand, if we take a look from composites, तो composites जो है वो strong है, वो tough है, वो moisture resistant है, वो radio opaque है, और वो जल्दी set होने वाले हैं। अब ज़रूरत थी कि ऐसा कोई मटेरियल बनाया जाए जिसमें इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन कर लिया जाए। अब अगर डिसएडवांटेजेस देखें तो ग्लास आयनोमर ब्रिटल और वीक है, मॉइस्चर सेंसिटिव है, रेडियो पेक भी नहीं है, बहुत कम रेडियो बेस्टी है मगर कम है कंपोजिट्स के निस्बत, सेटिंग भी स्लो होती है इसकी और वेयर रेजिस्टेंस भी कम है, घिसता है ये मटेरियल, अगर एसिड इरोजन हो रही है तो ये घिसना शुरू हो जाता है। हम कंपोजिट्स के डिसएडवांटेजेस देखें तो देयर इज नो डायरेक्ट एडहेजन विद द टूथ स्ट्रक्चर, कंपोजिट्स में पॉलीमर ज़्यादा है, श्रिंकेज ज़्यादा है, कंपोजिट्स में कोई फ्लोराइड रिलीज नहीं है। रेजन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमर सीमेंट्स को बनाया गया था इस अटेम्प्ट में कि इनको कंपोजिट और ग्लास आयनोमर की जो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके साथ ज्वाइन कर लिया जाए, ठीक है। दे वर मॉइस्चर सेंसिटिव, दे हैड लोअर, दे आर ऑल्दो मॉइस्चर सेंसिटिव एंड बट दे हैव बेटर स्ट्रेंथ, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए ग्लास आयनोमर की मॉइस्चर सेंसिटिविटी और लो अर्ली स्ट्रेंथ को कंपनसेट करने के लिए इनमें रेजन पार्ट ऐड किया गया था, ठीक है। रेजन पार्ट ऐड करने से क्या हुआ कि मॉइस्चर सेंसिटिविटी भी कम होगी और अर्ली स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी, ठीक है जी। इनकी कॉम्पोजिशन में तो वही है, फ्लोरो एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास है मगर उसके साथ पॉलीमर ऐड कर लिया जाता है। हम देख लेते हैं कि इसकी कॉम्पोजिशन में क्या है। इसकी कॉम्पोजिशन वही है, अनइंचेबल कैल्शियम फ्लोरो एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास, लेकिन अब चूंकि इसमें कॉम्पोजिट के कुछ पार्ट्स भी ऐड किए गए, तो क्लोरोकिनोन है विच इज़ कॉल्ड फोटो इनिशिएटर, जब लाइट देंगे तो ये उससे सेट होगा, ठीक है। और फिलर पार्टिकल थोड़े से इसमें होते हैं जो कि मॉइस्चर सेंसिटिविटी को रिड्यूस करते हैं। इसमें वाटर जो होता है वो आयनाइजेशन
ये रिएक्शन मीडियम होता है, ठीक है। ग्लास आयनोमर सीमेंट्स में अगर हम हीमा हाइड्रोक्सी इथाइल मेथैक्रिलेट ऐड कर लें विच इज़ अ पॉलीमर पार्ट, और बिस्फेनोल ए ग्लाइसिडाइल मेथैक्रिलेट ऐड कर लें विच इज़ अ कंपोजिट पार्ट, तो ये रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयोनोमर सीमेंट बन जाता है, ठीक है। ग्लास आयोनोमर के सीमेंट में लिक्विड में बिस्फेनोल ए ग्लाइसिडाइल मेथैक्रिलेट ऐड किया जाता है और इसके अलावा इसमें हीमा ऐड किया जाता है, ठीक है। ये दोनों वो चीज़ें थी जो कि हमारे पास कॉम्पोजिट्स में भी थी। इसका जो लिक्विड है आप देख रहे हैं कि डिफरेंट मेथिक ग्रुप्स आ गए हैं, ठीक है। इसकी एसिडिक आयंस भी हैं और बेसिक आयंस भी हैं, तो इसमें एसिड बेस रिएक्शन भी होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी ड्यूल क्योर सीमेंट है, इसकी दोनों तरह सेटिंग्स होंगी, एसिड बेस रिएक्शन भी होगा जिससे हार्डनिंग होगी, आपका जो आपके मैट्रिक्स पेशेंट के मुंह में डाला था वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता जो चेंज देगा, ठीक है। अगर सीमेंट पॉलीमराइजेशन क्या कहना चाहिए कि एसिड बेस्ड रिएक्शन और पॉलीमराइजेशन जैसे रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमर है, उन दोनों तरीकों से सेट हो रहा है तो वी कॉल इट अ ड्यूल क्योर्ड सीमेंट। लेकिन अगर ये है कि इन दोनों के साथ साथ इफेक्टिवेटेड कौन से, इसमें एसिड बेस रिएक्शन भी है और इसमें लाइट, सो इट्स कॉल्ड नाउ ट्राई क्योर्ड सीमेंट, ठीक है जी। ट्राई क्योर्ड ग्लास आयनोमर जो हैं उनकी 3 तरह से सेटिंग्स होती हैं। इसमें एसिड बेस्ड रिएक्शन भी है, मैं फिर बता देती हूँ, एक्टिवेटेड पॉलीमराइजेशन भी है और केमिकल पॉलीमराइजेशन भी है। इसका सेटिंग टाइम जो है वो ज़्यादा नहीं होता क्योंकि जैसे ही आप लाइट क्योरिंग शुरू हो जाती है, आधी क्योरिंग या सेटिंग पहली हो चुकी होती है जबकि आपने पाउडर लिक्विड को मिक्स किया हुआ होता है, ठीक है जी। दे हैव लेस सेटिंग टाइम, आराम से मिक्सचर को आप कैविटी में डाल लेते हैं, और लेकिन वो ये कहते हैं क्योंकि इसमें क्योंकि एसिड रिएक्शन अभी कंटिन्यूड है और पॉलीमराइजेशन भी कंटिन्यूड है, 4 आवर्स इसकी सेटिंग करें। चूँकि इसमें हमारे पास अब रेजिन पार्ट है तो इज मोर प्रोटेक्टिव आयनोवर, इसमें रेजिन या बॉन्डेज डालेंगे तो जो रेजिन इसके अंदर है उसकी वजह से आपका सीमेंट हार्ड नहीं होगा, सो दिस इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है। दिस इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन, और से देख लीजिए, दिस इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन। इसकी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्ड भी आ रहा है और दांत की सरफेस जो है अब उस पर ज़्यादा मटेरियल है, उसमें ज़्यादा रेजिन भी है और दांत की सरफेस आहिस्ता आहिस्ता इनका फ्लोराइड रिलीज रेट कम होना शुरू हो जाता है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल ग्लास, बट स्टिल अगर हम उसको एज अ होल देखें तो इसके जो फ्लोराइड रिलीज तकरीबन वैसी है जैसे कि ग्लास आयनोमर सीमेंट्स हैं। They have high compressive and diametral tensile strength. They are better in strength properties. ठीक है जी। Plus they have good bonding with enamel and dentine क्योंकि अब इन्हें केमिकल एडिशन भी मिल रही है और एक्स्ट्रा एसिड्स होने की वजह से उनको और एक्स्ट्रा बॉन्डिंग में मिल रही है क्योंकि वो सारे जो बिस्टियम में फीमा पॉलीएक्रिलेट ग्रुप्स ये सारे के सारे स्टिकी हैं, तो ये ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। Just take a look on the applications of glass ionomer cement जिसमें हमारे पास liners हैं, orthodontic bands हैं, core build-up materials हैं, then we have Pitt and Fisher sealants, ये protective restorations हैं जो बच्चों में लगाते हैं कि ताकि उन्हें caries ना हो जाए, restorative material के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, permanent luting के लिए तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, crown, bridges, metals, inlays and onlays के लिए। They are used as liners और bases under composite restoration, ये micro leakage को कम करते हैं, ठीक है जी। ये माइक्रो लीकेज को कम करते हैं। ये माइक्रो लीकेज को कैसे कम करते हैं क्योंकि इनमें रेजिन पार्ट भी है और इनमें ग्लास आयनोमर का पार्ट भी है।
ठीक है, और इनकी बॉन्डिंग की वजह से इनमें माइक्रो लीकेज कम हो जाती है। एक टेक्निक और है कि वो कहते हैं कि पेशेंट की बहुत डीप रेस्टोरेशन है और आप चाहते हैं कि आप एक स्टैटिक रेस्टोरेशन करें। सैंडविच टेक्निक पे फिर 2 साल पहले मैंने क्वेश्चन देखा था आपके यूक्यूज़ में। तो उसमें ये होता है कि ग्लास आयनोमर सीमेंट को बेस पे लगा दिया, सॉरी, इसमें क्या होता है कि जी अब हम, क्योंकि ग्लास आयनोमर सीमेंट में फ्लोराइड रिलीज हो रहा है और इसकी दांत के साथ केमिकल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास कॉम्पोजिट्स है विच हैज़ गुड स्ट्रेंथ। जी डेफिनेटली इट इज़ प्रिवेंटिंग सेकेंडरी केरीज। जब हम कहते हैं ना ये एंटी केरियोजेनिक है, इसका मतलब है कि जब दांत पे ये वाली फिलिंग हो जाए तो वहाँ पे दोबारा सेकेंडरी केरीज नहीं होती, प्रोवाइडेड कि आपने फिलिंग बहुत अच्छी की हुई है, ठीक है। डेफिनेटली इट इज़ प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस टू सेकेंडरी केरीज। सैंडविच टेक्निक हमारे पास एक टेक्निक है कि वो कहते हैं कि जी आप ग्लास आइनोमर सीमेंट और कॉम्पोजिट्स को मिक्स करके लगा लें, ठीक है। वो कहते हैं कि जो बहुत डीप कैविटी है आपके पास, तो आप ऐसे करें कि आप नीचे फ्लोएबल कॉम्पोजिट्स लगाएं और ऊपर ग्लास आइनोमर सीमेंट की फिलिंग कर दें। कॉम्पोजिट नीचे कैविटी में फ्लो कर जाएगा अच्छी तरह से, और ऊपर जो आपका ग्लास आइनोमर सीमेंट है वो एक स्ट्रेंथ आपको, सॉरी, आपका जो नीचे है वो आप बेस पे ग्लास आइनोमर सीमेंट दे दें और ऊपर आप कॉम्पोजिट से फिलिंग करते हैं। तो नीचे वाला ग्लास आइनोमर सीमेंट जो है वो केमिकल एडहेजन की वजह से सारी आपकी जो कैविटी की बेस है उसको सील कर देगा, और ऊपर आप जो कॉम्पोजिट्स देंगे वो ऊपर से आपको मेस्टिकेटेड स्ट्रेसेस से रेजिस्टेंस दे देगा। डिसएडवांटेजेस ग्लास आइनोमर सीमेंट्स में, जो रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आइनोमर सीमेंट जिसको हम अभी पढ़ रहे थे, उनको रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आइनोमर सीमेंट भी कहते हैं, इनको हाइब्रिड आयनोमर भी कहते हैं, ठीक है, इनको मॉडिफाइड ग्लास आयनोमर सीमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। इनमें श्रिंकेज होती है क्योंकि इनमें पॉलीमर पार्ट ज़्यादा है, श्रिंकेज की वजह से इनमें माइक्रो लीकेज हो सकती है, ठीक है, ये इनका डिसएडवांटेज है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब हम इन्हें लगाते हैं, इनमें हीमा होता है, हाइड्रोक्सी इथाइल मेथैक्रिलेट, ये एक्सपैंड करता है, ये रेजिन है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है, एक्सपेंड भी ज़्यादा करता है और ये कॉन्ट्रैक्ट भी ज़्यादा करता है। जब इन्हें ब्रिजेस में लगाया जाता है ल्यूटिंग के लिए तो ये एक्सपेंशन इनमें होती है, जब एक्सपेंशन होती है तो आपका ब्रिज या क्राउन टूट सकता है। तो वो कहते हैं कि अगर आप इस तरह का क्राउन या ब्रिज लगा रहे हैं जो बहुत हाई स्ट्रेस फीलिंग एरिया में है, तो बेहतर है कि आप उसको इसके साथ बॉन्ड ना करें। दे आर बायोकम्पैटिबल, लेकिन क्योंकि इनमें रेजन्स हैं तो रेजन्स की वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है पल्प की, और इनमें एलर्जी, पेशेंट आपके डेंटिस्ट को एलर्जीज हो सकती हैं क्योंकि इसमें रेजिन है और रेजिन थिक और स्टिकी होता है, उस वजह से कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस डॉक्टर को हो सकता है, असिस्टेंट्स को हो सकता है, या पेशेंट को अगर वो एलर्जिक है तो उससे कोई इम्यून रिस्पॉन्स हो सकता है। सो दे आर लेस बायोकम्पैटिबल देन द glass ionomer cements which are conventional glass ionomer cements. Compomers आपने डॉक्टर महविश के साथ लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, they are polyacid modified resin composites. Compomers एक्चुअली composites हैं जिनमें ग्लास आयनोमर का पार्ट ऐड किया गया है, और ये भी फ्लोराइड रिलीज करते हैं, और ये भी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं composites और ग्लास आयनोमर के करीब करीब होती है, मगर इनकी स्ट्रेंथ resin modified glass ionomer cement से कम होती है, ठीक है। So we had a huge section of glass ionomer cements today. Class, we had a huge section of glass ionomer cement today. Can you hear me? Assalamu alaikum class, can you hear me? Acha, Umaid, we are done with the lecture. ठीक है, we are done with the lecture right now. If you have any question, you can ask me. मैं थोड़ा सा समराइज कर दूँ। हमने ग्लास आइनोमर सीमेंट के बारे में पढ़ा है और हमने उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा है। हमने उसकी टाइप्स देखी जो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस हैं, और हमने उसकी टाइप, जी स्क्रीन इज एम्प्टी, screen sharing has been stopped. If you want me to share the screen again, I'll share it. लेकिन I'm done with the lecture right now. ठीक है? Excuse me, बात सुनिए। लेक्चर मेरा हो गया, स्क्रीन इस वक्त एम्प्टी और क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है, तो स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन दोबारा कहाँ से आएगा?
इधर से जी क्लास, if you have any question you can ask me. I told you कि we were talking about glass ionomer cements और हमने देखा कि उसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन या क्लिनिकल यूजेस के हिसाब से कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं. उन्होंने उसमें मेटल्स डाल के भी उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, उन्होंने उसमें रेजिन डाल के भी इसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी. आई एम हेयर फॉर नेक्स्ट 5 minutes then I'll leave. If you have any question you can ask me. अच्छा, I just want to share an update. I got an update from DME. आपके जून में एक वीक में अब 2 टेस्ट हुआ करेंगे. आपका पहला टेस्ट जो है वो कास्टिंग, नोबल मेटल एलॉयज और बेस मेटल एलॉयज पर है जो कि 10 जून को है. योर सेकंड टेस्ट इज ऑन 20th of June which includes investments and wrought alloys. ठीक है, 10th June and 20th June. You can ask me for the details through Umaid. You'll get the references and you'll get the curriculum too. Okay, I hope it's done now. This was all from my side. If you still have any concerns, you can ask your CR to convey the message to me. Okay, thank you. Take care.